son of PM Canning. He was also a cabinet minister. He was in a cabinet, was a cabinet minister. He was in a cabinet minister. If I am talking about, if you'll see that, perhaps you remember that in the world history 1856 में यहाँ पर क्या होता है, Crimean War, yes, in which Turkey was supported by Italy and UK, France, and later on by Italy against the Russia, and Russia was defeated. So Russia is trying to give the influence, understood it? In this area Russia was trying to give influence, understood? And in between this Iran or Persia has यहाँ पे Herat है, this Herat region has been occupied by Iran, understood? इनके पीरियड में ही जब ये आ रहे थे, so that time what happened in his period 1856 में, I said that Persia has been able to annex. पर्सिया ने किसको अनेक्स किया? पर्सिया अनेक्स्ड हेरात रीजन ऑफ अफगान. इसका मतलब दिख रहा था कि अफगानिस्तान स्लोली हेरात रीजन अफगानिस्तान, एंड स्लोली it will be completely occupied. Completely, ऐसा लग रहा था कि it will be slowly whole Afghanistan will be completely occupied, and then Russian influence is also coming on. तुरंत इन्हें कहाँ भेजा गया? He has been sent here, and he has come and then started taking control over Persian Gulf. He started taking over the control over Persian Gulf, and slowly Iran has been defeated, and Afghan has been also Afghan region of Herat has been also taken back. Understood? So Lord Canning, everything I am doing Lord Canning. Clear? तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज अफगानिस्तान को अटैक करके, हो सकता था अफगानिस्तान, हो सकता था रशिया क्या करता, अफगान को ले लेता, और अफगान के पास सीधे इंडिया है. आपको ही पता है इंडिया है ना, पाकिस्तान वाज अंडर इंडिया, ही कैन इजीली अटैक ऑन इंडिया. अंडरस्टूड? सो इफ समबडी इज गिविंग इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, दे कैन गिव एन इन्फ्लुएंस इन, yes, they can give influence in India. So therefore able to defeat Persia or Iran and maintain its influence in Afghan and nearby region against Russia. He is able to defeat Persia and maintain its influence in Afghanistan and near region against Russia. If the Russia will influence, so there will be a problem will create. Understood? And then it can easily come to India. It can easily come to India. So this was the situation when the Lord Canning has done so many things. He fought in the 1858 Sepoy Mutiny, and then he maintained its empire over there, and then he is able to, what is said that several 1858 Government of India Act and in 1861 Indian Council Act. अच्छे से every facts को याद करते रहेंगे, so that when the time will come, you know that the several student after reading for 3-4 years, they are generally understanding, okay, this is modern India, and I am moving one step ahead, one by one, so that you have an idea about how do the modern India is like. After the Canning,
आगे कैनिंग तो सभी को याद रखते होंगे, यस और नॉट? एवरीबडी शुड रिमेंबर कैनिंग. व्हाई? 1857 revolution, understood? And then first viceroy of India. तो ये तो सभी को याद रहेगा. Next one I said that Elgin. Who comes? Elgin first. And he was from the 1861 to 63, not for many years. Kila? Sorry, 62 to 63. 62, and there is no too much influensive thing has been happened. Means अभी जितने भी आएंगे less influensive is there. And then the reason I said that John Lawrence from the 1863 to 69, Lord John Lawrence was the Governor General of India and Viceroy of India. Elgin first, and in the John Lawrence, if you see, I said that Anglo Bhutan वॉर, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही कम जगह हिस्ट्री में मेंशन किया गया है. एंग्लो भूटान वॉर 1866-67, एंग्लो भूटान वॉर, अंडरस्टूड? क्या याद रहेगा आपको? जॉन, यस, जॉन लॉरेंस. और ये जॉन वो नहीं है, जॉन मैकफर्सन नहीं है. कौन है? जॉन लॉ है. वो जॉन जो कि लॉ पे चलता है, लॉ को फॉलो करता है. एंड लॉ को फॉलो करता है भुट्टा खाते खाते. क्या है? क्या खाता रहता है? भुट्टा. डू अंडरस्टैंड? यस, एंग्लो भूटान हुआ. और लॉ के अकॉर्डिंगली सारा कुछ काम करता है. उसने बोला कि फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसने फॉरेस्ट सर्विसेज ले आया. विच सर्विसेज कैन? Which services can? Imperial Forest Services, जो आज के डेट में आप क्या देखते हो? Indian Forest Services. Understood it? Clear? So it is in the name of in the name of Imperial. Now it become Indian. And in which period I said that? 1867. So Elgin, John Lawrence, understood? And thereafter the great leader, another Lord Mayo comes. Who comes? Lord Mayo. Yes. So ये जॉन लॉ ने क्या किया था पता है ना? गिन गिन कर जॉन ने लॉ की पढ़ाई करी थी. गिन गिन कर, काउंटिंग, गिन गिन कर. अंडरस्टूड? देखा? ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज एल, नहीं समझे? और इसमें क्या किया? ये गिन गिन कर पढ़ाई किया जॉन ने. तो जॉन ने क्या बना दिया? लॉरेंस बना दिया, लॉ बना दिया. लॉ की पढ़ाई करी थी. एल्गिन फर्स्ट एंड देन अदर हु कम्स? जॉन लॉरेंस. कैन यू रिमेंबर? एल्गिन फर्स्ट, गिन गिन कर उसने एल पढ़ाई करी, लॉ, एंड जॉन लॉरेंस. एंड लॉ से जॉन क्या कर रहा है? भुट्टा खा रहा है. और कानून बनाया इंपेरियल फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS. Understood? Then there is a coming of 1869 to 1872, and it is what? मायो. और इसके बाद जो है नॉर्थ ब्रोक. तो उसने क्या किया था? माया किया था. माया समझते हो? मैजिक. माया मीन्स मैजिक. और उसने माया किया और नोटबुक में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिख दिए, और उसी की वजह से वो जॉन लॉरेंस लॉ पढ़ लिया. आई सेड दैट माया किया था उसने, मायो.
and he is famous for, I said that, huh? Huh? European Oriental Mayo College at, yes, अजमेर. अजमेर पर इसने क्या बनाया? एंड ऑल आर फॉर द, लगभग ये सब प्रिंसेस के लिए था, ये प्रिंस वगैरह जो थे पढ़ने वाले जो, उनके लिए था. इट इज नॉट फॉर द जनरल, इट इज अंडरस्टूड. यूरोपियन ओरिएंटल मायो कॉलेज एट, एंड ऑलरेडी मैंने बोला था 1853 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था. क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए आया था ना, लॉर्ड मैकॉले. एंड देन यूनिवर्सिटी एट कोलकाता, यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे, यूनिवर्सिटी एट मद्रास. अंडरस्टूड. ये 3 के लिए फाइनली इसका काम स्टार्ट हो चुका था 1857-58 से. 1853 में इंट्रोड्यूस्ड एंड देयर आफ्टर. So European Oriental Mayo College at Ajmer. Thereafter I am talking about, he did this very good things in the what? Irrigation, railway and other reform. He established एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसमें एग्रीकल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया. व्हाट ही एस्टैब्लिश्ड 1861 में इसको रखा गया था, 1861 में ही रखा गया था, लेकिन यहाँ पे फाइनली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड वर्किंग इन बेटर फॉर्म. एंड देन I said that statistical सर्वे ऑफ इंडिया. और जहां पे भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स आ गया. वी हैव टू नो द डिफरेंट. यदि मैं कहीं सर्वे करने जाऊंगा, इफ आई सो दिस मच ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दिस मच ऑफ दिस मच इरिगेशन, दिस मच, वी हैव टू आइडिया अबाउट इट, अदरवाइज वी कैन नॉट बी. सो इरिगेशन, रेलवे, एजुकेशन एंड देन सेवरल रिफॉर्म्स ही हैज डन. और जिसके पास माया होगा, मैजिक होगा, तो वो बहुत कुछ कर सकता है. यस और नॉट? मायो, लॉर्ड मायो. और जॉन लॉरेंस ने क्या किया था 1863 to 69? यस, जॉन लॉरेंस लॉ पढ़ा. और कैसे पढ़ा? वो भुट्टा खाते खाते, एंग्लो भूटान वॉर 1866-67. एंड उसने क्या बन गया? वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. Understood? IFS क्या बन गया? Next one we have seen, I said that 1869 to 72 Lord Mayo, and the Lord Mayo I said that has opened at Ajmer, European Oriental Mayo College at Ajmer. ठीक है, माया से. He has done several good things in which I said that irrigation, education and then railway improvement has been done. And agriculture survey of India, statistical survey of India, it is clear, established. अच्छा, 1861 में लॉर्ड कैनिंग में लिखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. लिखा दिया था मैंने, हाँ लिखा दिया था. सो माया हो गया. माया से आपने क्या बना रहे हो? मैजिक चाहते हो ना, नोटबुक लिख जाए, बेस्ट नोट्स हो, अच्छा सिलेक्शन हो, एग्जाम में भी नोटबुक आता है. माया करो, ऑल द आंसर्स आर रेडी. सो माया से आप क्या पढ़ना चाहते हो? नोटबुक. द नेक्स्ट वन आई सेड दैट, अब यहाँ से एवरी 4 years देयर इज अ गवर्नर जनरल. आफ्टर दैट देयर इज एन एवरी 4 years देयर इज अ गवर्नर जनरल. एंड आई सेड दैट लॉर्ड नॉर्थब्रुक, notebook from the 1872 to 76. He was the, so which are the governor general we have seen? 1862 to 1863. Who is the governor general? Elgin first,
एल गिन कर पढ़ा जॉन ने, और लॉ पढ़ा जॉन लॉरेंस 1863 टू 69, एंड 1869 टू 1872 दिमाग में एकदम स्टोर करते रहे। 1869 टू 1872 लॉर्ड मायो, और माया से उसने क्या किया, नोटबुक जलाया था। नेक्स्ट वन इट इज ना 69 टू 72 मायो, एंड 72 टू 76 नॉर्थब्रुक। सो 69 टू 72 में क्या क्या हुआ, व्हाट हैज बीन हैपेंड ड्यूरिंग द लॉर्ड मायो? फर्स्ट वन आई सेड, कौन सा कॉलेज खोला उन्होंने? यूरोपियन ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल मायो कॉलेज एट अजमेर, एंड देयर आफ्टर अजमेर दिखता है ना इन राजस्थान। देयर आफ्टर वी हैव बीन एबल टू सी नेक्स्ट इरिगेशन, एजुकेशन, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। एंड देयर आफ्टर he has done in the agriculture survey of India, agriculture department, and then a statistical survey of India. Then coming of Northbrook, and it has not been too much influential period is this. Next one I said that Harami. Who is Harami? Lalten. ये याद रखना, 76 to 80 I'll say that you can remember with the help of this Harami word, because you know that he has wasted lots of money. 1876 to 1880 जितना भी काम किया, it is what, not favor to the India. He did in 1878 he did Anglo-Afghan war and the great loss. Great economic crisis. Understood? Great economic crisis. He also introduced vernacular, what? Press Act. He also introduced what? Vernacular means local language में जो प्रेस मैगजीन आता था उसको उनके लैंग्वेज में लिखा जाए, इंग्लिश में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और लोगों पे